سب سے پہلے بات کریں گے جنوبی پنجاب کے 3 شہروں میں دفعہ 144 نافذ۔ ملتان، سرگودا، وہاڑی میں دفعہ 144 نافذ کیا گیا۔ ہر قسم کے سیاسی اجتماعات اور احتجاج پر پابندی عائد۔ پابندی کا اطلاق جمعرات 10 اکتوبر سے ہفتہ 12 اکتوبر کو ہوگا۔ دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ متعلقہ ضلع انتظامیہ کی درخواست پر کیا گیا۔ دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ محکمہ داخلہ نے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بات کریں گے ڈینگی کے حوالے سے۔ بہاولپور میں ڈینگی آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ وکٹوریا اسپتال میں 24 گھنٹے کے دوران 2 مریض رپورٹ ہوئے۔ شہر کے مختلف اسپتالوں میں 18 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ بہاولپور میں ڈینگی کی صورتحال بگڑنے لگی۔ وکٹوریا اسپتال میں مزید 2 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ دونوں مریضوں کا تعلق شہر سے ہے۔ طبی ماہرین نے ڈینگی کے بڑھتے کیسز پر شہریوں کو خبردار کر دیا۔ شہر کے مختلف اسپتالوں میں 24 گھنٹے کے دوران 18 مشتبہ مریض رپورٹ ہوئے۔ رواں سال ڈینگی کے 116 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ ڈینگی کی پہلی علامت بخار اور سر درد ہونا ہے۔ جسم درد اور کمر درد بھی ڈینگی کی علامات میں شامل ہے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو ہلکے بخار کی صورت میں ہسپتال رجوع کرنے اور سوتے وقت مچھردانی کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ مبارک پور کے شہری جدید دور میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم۔ بستی ایوب مسن میں بجلی اب تک موجود نہیں۔ اہل علاقہ نے حکومت سے بجلی فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ انور آباد میں بنیادی سہولیات کا فقدان۔ بستی ایوب مشن کے رہائشی بجلی جیسی نعمت سے محروم۔ گرمی اور مچھروں سے تنگ شہری مصنوعی پنکھے استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ تقریباً انور آباد ساری بستی 50-60 جگہ ہے۔ اج تک لائٹ نہیں ملی۔ لائٹ بھی سارے گھروں کے اتو ٹپی گئی ہے۔ اسا اپیل کریں حکومت کو جو لائٹ سا کو ملی ونجے۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ جانوروں کو پانی پلانے اور دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے ہینڈ پمپ استعمال کیا جاتا ہے۔ سارے کو ہزارے ہلاک تھے کھڑے ہیں، سب گرمی مچھر کھان سکوں۔ اسا بڑے خوش تھے کھڑے ہیں، حکومت مہربانی کرے، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کے ستانگ ڈاڑے تھے کھڑے ہیں۔ لائٹ کوئی شے بھی کیا نہیں۔ بستی ایوب مشن میں 50 سے زائد گھر ہیں جہاں بجلی کی سہولیات میسر نہیں۔ اہل علاقہ نے حکومت سے بجلی کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین عبدالحمید بلو کے ساتھ دلشاد جویا، روہی، مبارک پور۔ بہاولپور میں جرائم پیشہ عناصر بے لگام ہے۔ شہر میں دن بدن چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں بڑھنے لگیں۔ نشے کے عادی افراد مساجد سے بھی چوریاں کرنے لگے۔ مسجد سے سامان چوری کرنے والے شخص کو متولی نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ معاشرے کی اخلاقیات دن بدن پستی کی طرف جا رہی ہیں۔ بہاولپور میں منشیات کے عادی افراد مساجد سے چوریاں کرنے لگے۔ جامع مسجد محمد یار سے سامان چوری کرنے والے ملزم کو متولی نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ باقاعدہ ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے۔ کیا کرنے آئے تھے یہاں پر؟ بھائی کے لیے بولا تھا میں۔ تو یہ چوری کیوں کر رہے تھے یہاں؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ مسجدوں میں بھی چوری کرتے ہو؟ ہاں یس سر، پھر آئندہ کرو گے؟ نہیں سر۔ آئے تو تالے کھولے آپ نے؟ جی میں تالے کھولے تے اندر ٹوب دینا پہ ٹوب پانی والی اگے میں سوئی کرے نا چابیاں سارے کھولے تالے لگے پے۔ چوری کر کے لے کے جانا؟ جی ہاں جی ہاں چوری لے کے دینا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ نشے کے عادی افراد کو گرفتار کر کے حوالات میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر تحویل میں کوئی ملزم مر جائے تو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ذرائع کے مطابق شہر میں جگہ جگہ منشیات فروخت کرنے اور پینے والے قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مجھے تو نشئی لگتا ہے۔ ایک اچھا انسان ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو نشے کے عادی ہیں اور جو مساجد اور گھروں کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے جرائم کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین شاہ سکلین کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور۔ اب آپ کو بتائیں لڈن میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سپورٹس میلے کا انعقاد۔ اکیلا دولتانہ ایجوکیشنل کمپلیکس میں سجے میلے میں کھیلوں اور ہم نصابی سرگرمیوں کے مقابلے کروائے گئے۔ مقابلوں میں ضلع بھر کے پیپ اسکولوں کے طالبہ و طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ لڈن کے اکیلا دولتانہ ایجوکیشنل کمپلیکس ہائی اسکول دولت آباد میں کھیلوں اور ہم نصابی سرگرمیوں کا انعقاد۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مقابلوں میں مختلف سکولوں کے طلبہ و طالبات نے کھیلوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مقابلوں کی سرپرستی پیف کنوینئر شازیہ دولتانہ، ضلعی صدر سپورٹس کمیٹی پیف سعود مختار اور ممبر سپورٹس کمیٹی پیف روق خالد نے کی۔ اس موقع پر شازیہ دولتانہ اور سعود مختار کا کہنا تھا کہ مقابلوں کا مقصد طلبہ کی ذہنی اور جسمانی نشو نما کے ساتھ ساتھ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو نکھارنا بھی ہے۔ ہم نصابی سرگرمیاں طلبہ کی شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
इस इवेंट का मकसद ये है कि बच्चों की जो ख्वाबीदा सलाहियतें हैं उनको उजागर किया जाए, बच्चों में खुद एतमादी पैदा की जाए। बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तकारीर की, बहुत अच्छी तलावत और नात के मुकाबला जात हुए। स्पोर्ट्स के हवाले से माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इवेंट था और अकीला दौलताना कम्प्लेक्स ने जिस तरह मेज़बानी की उसके भी हम लोग तहे दिल से मशकूर हैं। पैफ के अंडर प्रोग्राम किया गया है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया गया है और इसमें बहुत सारे स्कूल्स जो हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और हम लोग सारे के सारे इस फंक्शन को एंजॉय भी कर रहे हैं। मेंबर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी पैफ राव खालिद शरीफ ने कहा कि ऐसे मुकाबले बच्चों की तख्लीकी और जिस्मानी सलाहियतों को निखारने का सबब बनते हैं। ये तालीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तालीम का ज़्यादातर अफादियत बच्चे के अंदर खुद एतमादी आने से पैदा होती है, ताकि बच्चे अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी की तरफ जाने के लिए अपनी ख्यालात का इजहार, अपनी बात, अपना कोई मसला बयान कर सकें। इसको बेहतर बनाने के लिए ये मुकाबला जात का इनेकाद किया जा रहा है। तकरीब के आखिर में पोजीशन हासिल करने वाले तलबो तालबात में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन असलम कमलाना के साथ बिलाल शाकिर जोया, रोही, लुडन। जहांपुर में वज़ीर आला पंजाब के हिम्मत कार्ड्स की तकसीम का अमल जारी। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राजनपुर शाजिया नवाज ने हिम्मत कार्ड कैंप का दौरा किया। अब हुकूमत मजदूर अफराद को सहूलियात फराहम करने के लिए मुतहरिक। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राजनपुर शाजिया नवाज का दौरा जहांपुर। उन्होंने हिम्मत कार्ड के इजरा और रकूम की तकसीम का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जहांपुर नादिया भानी भी उनके हमरा थी। मजदूर अफराद के वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब के हिम्मत कार्ड प्रोग्राम को खूब सराहा। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शाजिया नवाज का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि जिला भर के 1400 मुस्तहक अफराद के ATM कार्ड और रकूम आ चुकी है, जो मजदूर अफराद में तकसीम की जा रही है। ये वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का बहुत एहसन इकदाम है खसूसी अफराद के लिए, और इस वक्त तकरीबन 1400 से जायद कार्ड हमें रसीव हो चुके हैं। 10,500 की किस्त है जो हर 3 महीने के बाद खसूसी अफराद किसी भी बैंक से या ओमनी से निकलवा सकते हैं, और उनके नाम का ATM कार्ड दिया जा रहा है ताकि किसी किस्म की एम्बेजलमेंट ना हो। शहरियों का कहना था कि हिम्मत कार्ड प्रोग्राम पंजाब सरकार का ऐसा इकदाम है, इससे माजूर अफराद को मदद मिलेगी। कैमरामैन जुनैद जावेद, कैमरा जावेद इकबाल, रोही, जहांपुर। नगर में हिंदू बरादरी अपना त्यौहार मनाने में मसरूफ। बहावल नगर के कदीमी मंदिर में तकरीब का एहतमाम किया गया। मंदिर में पाक अफवाज और इदारों के लिए खसूसी दुआ की गई। मजीद जान लेते हैं कासिम अली शेख से। जी बताइए। मुल्क भर की तरह भावन नगर में भी हिंदू वाल्मीकि बरादरी अपना शेरां वाली माता का जागरण का त्यौहार जो है मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मना रही है। बहुत ज़्यादा जोश व जज्बा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावन नगर के कदीमी मंदिर पर, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन और मर्द मौजूद हैं। पूजा पाठ का सिलसिला भी जारी है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मजहबी रहनुमा हिंदू बरादरी के साजन भाटिया साहब, उनसे बात कर लें। साजन भाटिया साहब, बताइएगा आज का जो त्यौहार है इसकी क्या तारीख है, इसका आप इस पर क्या पैगाम देते हैं? जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की तरह आज बहावलनगर शहर में भी बड़े अकीदत और एहतराम और मुकम्मल मजहबी आज़ादी के साथ ये दिन मनाया जा रहा है। ये जो 9 नौरते होते हैं ये हमारे 7 रोज़े होते हैं। इन रोज़ों के अंदर हम अपने घरों के अंदर हमारी माएँ बहनें रोज़े रखती हैं और उसके बाद जब 9 नौरते पूरे हो जाते हैं तो फिर ये जागरण शुरू होता है हमारा। और इस जागरण में सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी माएँ बहनें और हमारे मजहबी रहनुमा हैं उन्होंने पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की है, पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए दुआएं की गई हैं, पाक फौज के लिए दुआएं की गई हैं। और ये वो हुब्बुल वतनी है कि अक्सरियत में तो हम कम हैं लेकिन मुहब्बुल वतनी में किसी से कम नहीं है। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगे, और यही वो वतन है कि जिसे हिंदू बरादरी वाल्मीकि बरादरी ने छोड़ना कबूल नहीं किया, कि हिंदुस्तान को कबूल नहीं किया बल्कि पाकिस्तान को कबूल किया कि यहाँ जो बसने वाले लोग हैं यहाँ मोहब्बत और अमन भाई के साथ रहते हैं। जबकि वहाँ पे हमें यह डर था कि RSS के लोग हमें अजरत का निशाना बनाएंगे। इसलिए हमारे इस मुल्क के साथ वफादारियाँ, क्योंकि ये सरजमीन हमारी माँ है, जननी और जन्म भूमि सुरग से बढ़कर है। ये वो जननी सुरग से बढ़कर इसलिए है कि यहाँ हमने जन्म लिया और इसके रखवाले हम हैं, और ये मुल्क हम सबका पाकिस्तान मुल्क है। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान मुल्क हम सबका है। हम अक्सरियत में ना होने के बावजूद लेकिन मुहिब्बुल वतन जो है। जी कासिम, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, कादरपुरा में रूरल हेल्थ सेंटर के स्टाफ और इंस्पायर प्रोजेक्ट के ज़ेर एहतमाम आज बसारत के आलमी डे के मौका पर आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
बसारत के आलमी दिन के मौका पर महकमा हेल्थ पंजाब और इंस्पायर प्रोजेक्ट के ज़ेर एहतमाम रूरल हेल्थ सेंटर के स्टाफ की जानिब से यह आगाही वॉक का एहतमाम किया गया था। रूरल हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर RHC के SMO डॉक्टर खालिद शहजाद ने कहा कि इस वॉक का मकसद आवाम के अंदर आंखों की बिनाई की अहमियत को उजागर करना है। आंखें अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत हैं, इनका खास ख्याल रखना चाहिए। मुल्तान में ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम है। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स खस्ताहाली का शिकार। कचहरी चौक पर लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स भी गैर फाल हैं। मजीद जान लेते हैं सलमान ज़मीर से। जी बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, बात करते चलेंगे हम ट्रैफिक सिग्नल्स की। तो मुल्तान में लाखों रुपए की लागत से लगाए जाने वाले ट्रैफिक सिग्नल जो हैं वो गैर फाल हैं और गैर फाल होने की वजह से ट्रैफिक का फ्लो जो है मुतासर होता है। रात होते ही एक ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद नहीं होते और दूसरी जानिब ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो नहीं चल रहे होते, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है उसका फ्लो मुतासर होता है और ट्रैफिक जैम होना जो है वो मामूल बन चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक कचहरी पर, जहाँ पर 8 ट्रैफिक सिग्नल जो हैं वो हुकूमत की जानिब से लगाए गए थे, मगर देखने में ये आ रहा है कि वो ट्रैफिक सिग्नल जो हैं वो गैर फाल हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल हुकूमत की जानिब से लगाए गए थे मगर अब वो नहीं चल रहे, जिसकी वजह से लोगों को दुश्वारी का सामना है? महकमा को चाहिए सिग्नल वगैरह बहाल करें और कचहरी की तरफ बहुत रश होता है, हर आदमी को दुश्वारी बहुत होती है। यहाँ बस से हर चीज़ दुश्वारी है। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, मेहरबानी करके कि सब कुछ सही किया जाए और शहरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जी बिल्कुल, जो है वो शहरी सब यही कह रहे हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स को बहाल किया जाए और ताकि शहरियों की। जी सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मुल्तान में जराइम पेशा अफराद बेलगाम हैं। थाना बोहड़ गेट के हदूद में दुकान में डकैती की वारदात। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। CCTV में मुलजिम को असलहे के जोर पर लूट मार करते देखा जा सकता है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। थाना बोहड़ गेट के हदूद में दुकान में डकैती की वारदात पेश आई है। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। देखा जा सकता है कि मुलजिम को असलहे के जोर पर लूट मार करते देखा गया है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है, मजीद कार्रवाई का भी आगाज कर दिया। सरिंडा मोहम्मद पनाह में इलाहाबाद से 10 साला मोहम्मद अहद के अगवा होने का मामला। बच्चे के वालिद की मुद्दत में थाना सिटी में मुकदमा दर्ज। बच्चा मस्जिद गया था लेकिन वापस ना आया, वालिद ने ऐसा बताया। सरिंडा मोहम्मद पनाह में इलाहाबाद से 10 साला मोहम्मद अहद के अगवा होने का मामला है। बच्चे के वालिद की मुद्दत में थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बच्चा मस्जिद गया था लेकिन वापस ना आया। सरिंडा मोहम्मद पनाह में इलाहाबाद से 10 साला मोहम्मद अहद के अगवा होने का मामला है। बच्चे के वालिद की मुद्दत में थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफ्तीश का भी आगाज हो चुका। बच्चा मस्जिद गया था और वापस ना आया। जनूबी पंजाब भर में बसारत का आलमी दिन मनाया गया। आंखों की सेहत के हवाले से आवाम को आगाही फराहम करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार्स और वॉक का एहतमाम किया गया, जिनमें तिबी माहिरीन ने शुरका को बिनाई की हिफाजत के लिए मुफीद मशवरे भी दिए। बसारत के आलमी दिन पर जनूबी पंजाब भर में अवामी आगाही के लिए तकरीबात का इनेकाद। आलमी यौम बसारत पर बहावलपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल केनाल कॉलोनी में सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। शुरका का कहना था कि आंखें हैं तो जहान है, अपनी आंखों से प्यार करें, धूप में काले चश्मे का इस्तेमाल करें। वॉक का मकसद आंखों की अहमियत को उजागर करना था। कंप्यूटर और टीवी के इस्तेमाल पर हिफाजती ऐनक इस्तेमाल करें। इस साल का बल्कि थीम भी स्पेशली बच्चों के लिए है कि लव यूर आइज़। तो बच्चों के लिए, मेरा पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि अगर आपके बच्चा जो है वो टीवी के करीब जाके देख रहा है या उसकी आंखों से पानी आ रहा है तो मुआयना ज़रूर कराएं। आंखों से प्यार करें। और आंखों से प्यार कैसे किया जा सकता है, ये सिर्फ ये है कि आप कोई भी मसला है जैसे बच्चों में है, शुरू में ही बच्चों को चेक करवाना चाहिए। उनकी अगर कोई कमी है, उन्हें नज़र सही नहीं आ रहा तो उनको चेक करवाना चाहिए। बिसारत के आलमी दिन पर शेख सैद हस्पताल रहीमिया खान में भी वॉक का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी, MS डॉक्टर अमजद अली ने आगाही वॉक की क़यादत की। हेड ऑफ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर सदीक ने कहा, 10 अक्टूबर को बच्चों की बिसारत बचाने के हवाले से दिन मनाया जाता है। बिसारत बचाने के लिए स्क्रीन का वक्त कम करना होगा। बच्चों की आंखों से
पानी निकलने पर फौरी डॉक्टर से रुजू किया जाए। खानपुर इंतजामिया सरकारी नरखनामा पर अमल दरामद करने के लिए मुतहरक। किट में दूध 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि दूध की सरकारी कीमत 115 रुपए फी किलो मुकर्रर है। सरकारी कीमत से महंगा दूध फरोख्त करने वालों को इंतजामिया ने भारी जुर्माने कर दिए। दूसरी जानिब दूध की कीमत न बढ़ने पर मिल्क एसोसिएशन सरापा एहतजाज, मतअद्दद दुकानें बंद कर दी। शहर भर में दूध नायाब हो गया। मुजाहिरीन का कहना था दूध महंगे दामों खरीद कर कम कीमत पर कैसे फरोख्त करें। इंतजामिया बिला वजह जुर्माने कर रही है। ये हर दूसरे दिन जो है ना मजिस्ट्रेट आ जाते हैं। अब जो सिलसिला चल रहा है वो ये है कि हर रोज़ एक मजिस्ट्रेट जो है ना जुर्माना करने के लिए आ जाता है। ये एक एक दुकान को अब 3 दिन में 3 जुर्माने हो चुके हैं। ये 7,000 रुपये अगर एक दुकानदार 3 दिन में जुर्माने भरेगा तो वो बच्चों का पेट कहाँ से पालेगा। हमें वो रेट दिया गया है 115 रुपये गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है, जिसकी खरीदारी हमारी तमाम दुकानदारों की जो खरीदारी है वो 145 रुपये, 140 रुपये, 150 रुपये तक है, और हम मजबूरी की वजह से 140 और 150 रुपये सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ हमें मजिस्ट्रेट साहिबान जुर्माने करते हैं। हमें डेयरी फार्म से भी दूध जो है ना वो 145 रुपये पर किलो मिलता है। उसमें ये है कि लाहौर में और बाकी शहरों में जो रेट है, सरकारी रेट वो 160 रुपये है, जबकि जानवरों की फीड पूरे पाकिस्तान में सेम रेट है। इसीलिए हम जिस रेट पे दूध खरीद रहे हैं उस रेट से हमें 10 से 15 रुपये दूध का मार्जिन दिया जाए। कम से कम 160 रुपये लीटर दूध की सरकारी कीमत जो कि बाकी शहरों में चल रही है वो हमारे खानपुर में मुकर्रर की जाए। मिल्क एसोसिएशन की हड़ताल से शहरी परेशान। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से दूध की कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आमिर सुहेल, रोही, खानपुर। तकरीब आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म देता है।